Hello students, this is the fourth and final part of the story Madam Rides the Bus by Valikanan. Now let's begin. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. The conductor gave Vali her ticket. He asked if her mother would be searching for her. कंडक्टर ने वली को उसका टिकट दिया और उससे पूछा कि क्या उसकी मां उसे ढूंढ नहीं रही होंगी. नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड. वली ने कहा. वली सेड दैट नो वन वुड बी सर्चिंग फॉर हर, उसे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा. द बस स्टार्टेड, बस आगे बढ़ी. एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स. Wonderful, remarkable, REMARKABLE. Another meaning, interesting, INTERESTING. The bus started and again there were the same wonderful sights. The bus started and during the journey there were same interesting or remarkable scenes. बस आगे बढ़ी और ठीक उसी प्रकार से उसे वंडरफुल, रिमार्केबल, इंटरेस्टिंग दृश्य देखने को मिले. Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. Wally wasn't bored means Wally did not get bored at all. Wally जरा भी बोर नहीं हो रही थी. Slightest means least, LEAST, and greeted means enjoyed or welcomed everything with the same excitement, same joy, same excitement she had felt the first time. वली यात्रा के दौरान जरा भी बोर नहीं हो रही थी और greeted everything, हर चीज का उसने स्वागत किया, एंजॉय किया. विद द सेम एक्साइटमेंट, उसी आनंद के साथ, एक्साइटमेंट के साथ. शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जो आनंद उसने विलेज से टाउन की यात्रा के दौरान उठाया था. बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. लेकिन अचानक वली ने देखा कि एक यंग काउ, एक छोटी सी गाय, लाइंग डेड बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे मरी पड़ी है. जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, और उसे किसी तेज चलते हुए वाहन के द्वारा टक्कर लग गई थी, जिसके कारण वह सड़क के किनारे मरी हुई पड़ी थी. सडनली वली सॉ a dead young cow lying on the side of the road. Some fast moving vehicle had collided with that cow. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वली ने कंडक्टर से पूछा. वली asked conductor if that was the same cow which was running ahead of the bus ड्यूरिंग देयर जर्नी टू द टाउन. वली ने कंडक्टर से पूछा कि क्या वह वही गाय है जो विलेज से टाउन की यात्रा के दौरान बस के ठीक सामने दौड़ रही थी. द कंडक्टर नॉडेड मीन्स मूव्ड हेड बैक एंड फोर्थ. कंडक्टर ने अपना सर हिला करके सहमति जताई. एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस. ओवरकम मीन्स टू विन or surpass, SURPASS. The conductor nodded and she was overcome with sadness. Overcome with sadness means full of sadness. और यह दृश्य देखकर वली बहुत उदास हो गई. What had been a lovable, beautiful creature, living being, just a little while ago, had now suddenly lost its charm, beauty, and its life, and looked so horrible or dreadful. So frightening means fearful,
as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare. Stare means to look or gaze in one direction continuously, लगातार एक ही दिशा में देखना या टकटकी लगाकर देखना. In its lifeless means inanimate, INANIMATE, निर्जीव, eyes, blood all over. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life. Valli said, this was a lovable and beautiful animal some time ago. कुछ समय पहले वही गाय कितनी प्रिय और कितनी सुंदर दिखाई पड़ रही थी. Suddenly it had lost its happiness and life. और अचानक उसी गाय ने अपनी हैप्पीनेस, अपने चार्म, अपनी ब्यूटी को खो दिया. It looked very bad and full of fear. और वो गाय जो कभी सुंदर और प्रिय दिखाई पड़ रही थी, अब वो बैड और फुल ऑफ फियर है, यानी अब कितनी भयावह, ड्रेडफुल दिखाई पड़ रही है. फ्राइटनिंग, डरावनी. लेग्स स्प्रेड-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes. और उसके हाथ पैर spread-eagled means spread out, और legs and hands stretched out, उसके हाथ पैर फैले हुए हैं. A fixed stare, और उसकी दृष्टि भी फिक्स हो चुकी है. In its lifeless eyes, अपनी निर्जीव आंखों से वह एक ही दिशा में देख रही है, और उसके बॉडी के चारों ओर खून फैला हुआ है. There was blood around its body. Let me explain it again. The conductor nodded. कंडक्टर ने अपने सिर को हिलाया और उसने अपनी सहमति जताई. एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, और वली बहुत दुखी हो गई. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago, this was a lovable and beautiful animal some time ago, had now suddenly lost its charm, its beauty and its life, and looked so horrible or dreadful, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, legs and hands stretched out, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. Suddenly the same cow had lost its happiness, its beauty and life. It looked very bad and full of fear. Its legs were stretched out and lifeless eyes were staring at one point, one direction. There was blood around its body, और उसके शरीर के चारों ओर खून फैला हुआ था. नेक्स्ट पैराग्राफ. द बस मूव्ड ऑन. द बस कंटिन्यूड टू मूव. बस आगे बढ़ी. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, और जो डेड काउ की मेमोरी थी, स्मृति थी, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ haunted her, dampening her enthusiasm. Haunted means troubled, TROUBLED, and dampening means making less strong or urgent. Another meaning, reducing. Enthusiasm means strong interest. और उसकी जो मेमोरी थी ऑफ द डेड काउ की, वो वली को बहुत परेशान कर रही थी, उसे कष्ट दे रही थी. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ ट्रबल्ड वली, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, और उसके उत्साह को, एक्साइटमेंट को भी कम कर रही थी. इट रिड्यूस्ड हर एक्साइटमेंट. शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, और वह विंडो से बाहर देखना नहीं चाहती थी. Now she did not want to look out of the window. She sat thus, glued means fixed to her seat, until the bus reached her village at 3:40. Therefore Valli continued to sit fixed on her seat
वह अपने सीट पर ही फिक्स्ड हो गई, चिपक गई, बैठी रही। टिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40 PM, तब तक जब तक कि उसकी बस 3:40 PM तक विलेज नहीं पहुंच गई। शी स्टूड अप, वह खड़ी हो गई। एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, स्ट्रेच्ड मीन्स टू थ्रस्ट आउट, THRUST, टू थ्रस्ट आउट one's own limbs after relaxing, अंगड़ाई लेना। वली खड़ी हो गई और उसने अपने आप को स्ट्रेच किया। Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." वली stood from her seat and stretched herself. वली अपने सीट से उठी और अपने आप को उसने स्ट्रेच किया, अंगड़ाई लिया। Then she looked at the conductor and said that she hoped to meet him again. फिर वह कंडक्टर की तरफ मुड़ी और उसने कहा कि वह उससे फिर मिलेगी। ओके मैडम, he answered her smiling. कंडक्टर मुस्कुराते हुए वली से कहा, ओके मैडम। The conductor smiled at Wali and said, okay madam, whenever you feel like a bus ride, come and join us. उसने और आगे कहा कि जब कभी आपको बस यात्रा की आवश्यकता महसूस हो तो आप अवश्य आएं और हम सबको ज्वाइन करें। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और जो फेयर मीन्स चार्जेस और रेंट, किराया। कंडक्टर ने कहा कि डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना न भूलना। ही रिमाइंडेड हर टू ऑलवेज ब्रिंग द फेयर। द कंडक्टर स्माइल्ड एट वली एंड सेड, ओके मैडम। He said that whenever she wanted to ride a bus, she could come to his bus. He also reminded her to always bring the fare. She laughed and jumped down from the bus. Wali laughed and jumped down from the bus. Wali हंस पड़ी और बस से जंप करके नीचे आ गई। Then away she went. She ran directly towards her home, running straight for home. सीधे वह डायरेक्टली घर की तरफ दौड़ते हुए आगे बढ़ी। When she entered her house, और she reached home, उसने देखा, वह घर पहुंची। She found her mother awake, उसने अपनी माँ को जगे हुए पाया। She noticed that her mother had already woken up and talking to one of Wali's aunts, and she was talking to one of Wali's aunts, और वली की एक aunt से वह बातें कर रही थी। The one from South Street, means this aunt lived in the South Street of the village. गांव के South Street में ये रहती थी उसकी aunt, जिससे उसकी माँ बात कर रही थी। This aunt was a real chatterbox. Chatterbox, you know, a talkative person, बातूनी, वन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है, उसे चैटर बॉक्स कहते हैं। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, और दिस ऑन्ट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स। दिस ऑन्ट वॉज वेरी टॉकेटिव। वल्ली की जो ये ऑन्ट थी वो बहुत टॉकेटिव थी, बहुत बातूनी थी। शी नेवर स्टॉप्ड टॉकिंग आफ्टर स्टार्टिंग टू टॉक। जब कभी वो बात करना प्रारंभ कर देती तो कभी उनका मुंह बंद ही नहीं होता। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर ऑन्ट व्हेन वली केम इन। जब वली घर के अंदर आई तो उसकी ऑन्ट ने उससे पूछा, हर ऑन्ट आस्क्ड वली वेयर शी हैड बीन टू, कि वो कहाँ गई थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली, मीन्स अनकंसर्न्ड, यूं ही उसने पूछा, अनकंसर्न्ड। नॉट एक्सपेक्टिंग, नॉट सपोजिंग अ रिप्लाई, उन्हें किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। यूं ही उसकी ऑन्ट ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी। हर ऑन्ट हैड स्पोकन वेरी कैजुअली एज इफ शी डिड नॉट एक्सपेक्ट अ रिप्लाई। सो वली जस्ट स्माइल्ड, so Wali smiled at her
अपनी आंट को देखकर वली मुस्कुराई. एंड हर मदर एंड ऑन्ट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन. अपने डिस्कशन, कन्वर्सेशन मीन्स डिस्कशन, DISCUSSION, और टॉक अपनी बातचीत, वार्तालाप जारी रखे. हर आंट एंड हर मदर कंटिन्यूड टू टॉक. उसकी ऑन्ट और उसकी माँ अपने वार्तालाप को जारी रखे. Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst, means in the middle of, बीच में, and in the world outside. Her mother told to aunt that there are so many things around us and in the world. इस संसार में बहुत सी चीजें हैं हमारे आसपास. How can we possibly know about everything? Means we cannot know everything. हर चीज के बारे में हम जानकारी नहीं रख सकते. And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Means, and even when we know about certain things, we cannot fully understand about it. यदि हम कुछ निश्चित चीजों के बारे में जान भी जाएं, तो हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते. Oh yes, breathed Wali. Breathed means whispered, spoke in a low voice. WHISPERED. वली फुसफुसाई, धीरे से कही. Oh yes, अरे हाँ. Wali agreed with her mother and said yes in a low voice. What? Asked her mother. Her mother asked Wali about what she had said. वली की माँ ने उससे पूछा कि उसने क्या कहा. What's that you say? Oh, said Wali, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. Wali replied that she agreed with her mother what she had said, that certain things happen around us without our knowledge. कि बहुत सारी चीजें हमारे आसपास इर्द गिर्द ऐसी घटित होती हैं जिसकी हमें उसकी जानकारी नहीं होती. Just cheat of a girl, she is, said her aunt. उसकी aunt ने कहा. Cheat of a girl means naughty girl. Aunt said that Wali was a naughty girl. उसकी चाची ने, aunt ने कहा कि वली एक naughty girl है. Said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation. Pokes her nose means takes an interest in something that doesn't concern her. किसी ऐसी बात में इंटरेस्ट रखना जो उससे संबंधित न हो. और to interfere, हस्तक्षेप करना. Yet look how she pokes her nose into our conversation. Aunt also said that Wali interfered into their conversation just as though she were a grown-up lady, as if she was a grown-up lady. वली की ऑन्ट ने उसे एक नॉटी गर्ल कहा क्योंकि उसने सोचा कि यह किस प्रकार से हम लोगों के वार्तालाप के बीच में जैसे कोई बहुत ग्रोन अप लेडी हो, बहुत बड़ी हो गई हो, हम लोगों के वार्तालाप के बीच में इंटरफेयर कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है. वली स्माइल्ड टू हरसेल्फ. वली अपने आप मुस्कुराई. शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड व्हाई शी वाज स्माइलिंग. वह क्यों मुस्कुरा रही है, वो नहीं चाहती थी कि वे लोग उसकी मुस्कुराहट का राज समझ सकें. बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर. मीन्स but there was a very less chance for them to understand her smile. वली की मुस्कुराहट का राज समझने के लिए वली की मदर और उसकी ऑन्ट के पास बहुत कम चांस था. There was a very less chance for them to understand her smile. Alright students, now let's discuss some question answers. First question is, what was Wali's deepest desire? वली की deepest desire क्या थी? Find the words and phrases in the story that tell you this. और इस कहानी में वर्ड्स और फ्रेजेस को फाइंड आउट करिए
जो वली की डीपेस्ट डिजायर को डिनोट करते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी वलीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, डीपेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन द बस शी सॉ एवरी डे। वली की प्रबल इच्छा थी कि वह उस बस पर यात्रा करे जिसे वह प्रतिदिन देखती थी। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। कहानी में कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस को फाइंड आउट करिए जो वली की इस प्रबल इच्छा के बारे में बताते हैं। सो द सेंटेंस इन द स्टोरी विच डिपिक्ट दिस आर एज फॉलोज। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, एवरी डे, शी वॉच्ड द बस, वह बस को देखती थी, एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली, अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, एक छोटी सी इच्छा उसके मन में घर कर गई, एंड ग्रीव देयर, शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, उस बस पर वह यात्रा करना चाहती थी, इवन इफ जस्ट वंस, सिर्फ एक बार ही क्यों न सही, पर उस बस पर वह यात्रा करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर, और ये उसकी इच्छा प्रबल होती गई, एंड स्ट्रॉन्गर, और प्रबल होती गई, until it was an overwhelming desire, overwhelming, overpowering with emotions, और अंत में उसकी यही इच्छा एक प्रबल इच्छा के रूप में तब्दील हो गई। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड। बस की यात्रा के बारे में वली ने किस प्रकार से योजना बनाई। What did she find out about the bus, और बस के बारे में उसने क्या जानकारी प्राप्त किया। And how did she save up the fare, और उसने किराए को कैसे बचाया। So answer will be Wali planned that she would take the 1 o'clock afternoon bus। वली ने प्लान किया कि वह 1 o'clock की जो आफ्टरनून बस है उसे वह पकड़ेगी, उसमें सवार होगी। रीच द टाउन एट 1:45, और 1:45 पर टाउन पहुंचेगी, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और 2:45 पर वह अपने विलेज घर पर आ जाएगी। शी फाउंड आउट दैट द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। उसने इस बात की भी जानकारी प्राप्त की कि जो टाउन और विलेज की दूरी थी दैट वॉज 6 miles। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes, और विलेज से टाउन तक की जो यात्रा है उसको कवर करने में 45 minutes का समय लगता है। ऑन रीचिंग द टाउन, टाउन पहुंचने पर, इफ शी स्टेड इन हर सीट, वली ने योजना बनाई कि यदि वो अपनी सीट पर ही बैठी रहे, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और दोबारा वो 30 पैसे दे दे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह उसी बस से अपने घर पर वापस आ सकती थी। शी हैड केयरफुली सेव्ड व्हाटएवर स्टे कॉइन्स केम हर वे, जो कुछ भी पैसे रुपए उसे प्राप्त हुए उसे उसने सेव किया। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, हर तरह की इच्छाओं को कंट्रोल करके, टू बाई पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड 60 पैसे, और अंत में बस यात्रा के लिए उसने 60 पैसे बचा लिए। दिस इज हाउ वली सेव्ड अप द फेयर फॉर हर बस जर्नी। Alright students, I hope the lesson would have been clear to you. Now I would like to conclude my today's class. I'll be soon back with another interesting topic. Thank you for joining this session.